जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू दी मिडनाइट सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 529th एपिसोड. So an hour back I was conducting the live session and there was some technical glitch, so I had to delete everything, reschedule everything, and it took me 1 hour to set up everything for you. So in the last 1 hour, we have seen a lot of things happening in the market. uh, I hope today is an important session, or else I would have cancelled. Why it is important session? Because if you remember, we are on the 9th and 10th of March. In next 24 hours, many things will happen in this world. So we are very close to a turning point, a reversal point, which I've been talking about. So इसके बारे में updates ज़रूरी है, इसलिए जो है हम वापस लाइव आ रहे हैं. चलिए, आई होप एवरीथिंग वर्क्स. So what has happened in the last 1 hour is, number one, the crude oil has been decimated, and crude oil में एक अनबिलीवेबल शॉर्ट ट्रेड जो है ये अभी हमने दिया था 9930, and crude has fallen till almost 9300, 9200, or wherever you want to count. So this is again uh, unbelievable short trade, and I don't know how many people from our group are watching live, but if you are watching, then kindly let others also know that we take some unbelievable trades which very few people can foresee in this market. So हमने क्रूड में कल एक ट्रेड यहाँ बनाया था, ठीक है. एंड इफ यू नोटिस, we are not trading any other commodity. Okay, we are not trading any metals, we are not trading gold, silver, we are trading only crude, and tomorrow we will trade NG. सो वाई ओनली क्रूड एंड एनजी? कल के सेशन में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेटल्स वगैरह में अगर आप जाओगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली, इट्स वेरी वेरी रिस्की. सो कमोडिटीज का एक बूम और बस्ट साइकिल आता है, सो यू शुड बी वेल एक्सपीरियंस्ड ऑफ एटलीस्ट अ डेकेड टू अंडरस्टैंड विच सॉर्ट ऑफ साइकिल यू आर इन. सो मेटल्स आई थिंक इसे छोड़ देना चाहिए. क्रूड और एनजी पे फोकस करेंगे. कल भी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड था 600 पॉइंट के लिए. अगेन टुडे 700 पॉइंट्स और 600 पॉइंट्स इजीली किसी ने कहीं भी बुक किया होगा तो ये हो चुका है. सो 2 days very very huge trade setups have been taken. Now this is the advantage of being in our group. Many people ask कि ग्रुप में क्या बेनिफिट होगा. सो ग्रुप में बेनिफिट्स बहुत होते हैं. इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू कैन एक्सट्रैक्ट. सो सेकेंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है. You can join the group only if you are a student, because unless you understand what I am talking, unless you are familiar with my concepts, being in the group will be of no use to you. So second last opportunity coming this weekend. If you are interested, you can join. Okay, इससे पहले कि कोई और टेक्निकल ग्लिच आए, फटाफट अब मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है. एंड आई रियली लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस मार्केट. टेक्निकल ग्लिच के पहले मैं S&P 500 पे कुछ एक बात करने वाला था. आई वांटेड टू एक्सप्लेन समथिंग, बट बिफोर आई कुड एक्सप्लेन, it has already bounced up. So what I was about to say is, the decline which came here, okay, that was pretty much expected decline. Why? बिकॉज वॉट हैपन्स इज, यूएस मार्केट जो है दोस्तों 24 आवर्स मार्केट है, 24 आवर्स फ्यूचर्स मार्केट है. सो ओवरनाइट क्रिटिकल लोज एंड क्रिटिकल हाइज विल ऑलवेज बी रीटेस्टेड इन दी नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स. तो अगर आप देखेंगे ये जो पैनिक बॉटम बना यूएस मार्केट में, ये मॉर्निंग में बना, यानी जब वहाँ पे रात थी, राइट. सो नोबडी ट्रेडेड दिस, so it had to be retested here, and upon retesting, if it holds, then you will see a massive bounce. So this is typical of the US futures. अगर US futures market आप ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ जो है पता होगी. So what is the perspective as of now? See, lot of things we have to discuss आज इस समय, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है. तो स्टॉक क्वेरीज हम नहीं लेंगे, हम मार्केट की बात कर लेते हैं. स्टॉक क्वेरीज हम कल देख लेंगे. सी, राइट नाउ global markets, I think they are fairly oversold.
Okay, to be honest, by any stretch of imagination, they are fairly oversold. We are approaching a time cycle. So some sort of, as I said yesterday also, कि कुछ ना कुछ एक temporary short term एक breather होगा geopolitical front में. And yesterday the Indian government also spoke with both the parties. So definitely some weightage will come, and I think some sort of agreement will be reached in the short term. ये crisis कोई खत्म नहीं है. This crisis will unfold and ultimately end up in a World War III. That is for sure. But it will happen in stages. It will not happen in a one shot. So I think the round one of this crisis is coming to an end, and probably for a couple of months we can have some respite. But again ये प्रॉब्लम वापस से सरफेस होगा. ठीक है. सो मार्केट जो है जियो पॉलिटिकल क्राइसिस को आने वाले कई सालों के लिए, ये तो एक समझ में आ चुका है बाजार को कि ये चीज होगा. Immediately, what markets would like to see is how the US Fed behaves in this situation, because अब US Fed का behavior बहुत ज़्यादा critical हो चुका है. It's not like the other previous instances. Why it is very critical right now? Because you see अब मजाक मजाक में काम नहीं चलेगा. US Fed पिछले 13 साल से जो है बस टाइम पास कर रहा है, मजाक कर रहा है, मनी प्रिंटिंग कर रहा है. But now with this geopolitical crisis, US guys, they know that इनकी जो एक leadership है that is under question. Okay. And इनकी leadership जो है multiple front पे है. जैसे पहला obviously political and military front है. ठीक है. दूसरा है इनका डॉलर फ्रंट है. तीसरा इनका जो है वो है पेट्रो डॉलर फ्रंट है. ओके. सो each of these three aspects of the leadership is definitely under questionable, is questionable right now, and is also under threat. Okay. सो इन्हें ये चीज अब समझ में आ चुका है, और ये जो अभी जो जो ये रशिया यूक्रेन का मामला हुआ है, इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया. नॉट गुड इन दी शॉर्ट टर्म ये इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव है, बिकॉज इसके रिपरकेशंस भी आएंगे. बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 4 to 5 years इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया. ठीक है. इसके बारे में किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे. सो विद दिस बैकड्रॉप, यूएस फेड now it knows that it cannot play the easy game. It cannot keep on fooling the world by printing money. It has to act decisive. अगर ये decisively act नहीं करते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ इनको ही नुकसान होगा in the long term. So what is the first thing that they can do? The first thing is to set their house in order, which means कि rate hikes वगैरह जो है इनको एक भले ही moderate pace में करें, but एक consistently इन्हें जो है एक rate hike करना पड़ेगा. Easy monetary policy का जो पूरा अभियान इनका चल रहा है पिछले 14 सालों से, इसे बंद करना होगा. And this will be very good in the long run for financial market. Now when all these things are unfolding, what will happen is these markets, they will continue to move in a bearish manner, but with a bigger swings on both the side. So I think the first round of this bear market is getting completed here. We started talking about all these things in the last 3 to 4 months, when nobody was expecting, nobody was believing that all these things will happen. एंड फाइनली वी आर कल्मिनेटिंग हियर. हमने एक टाइम साइकिल एक नोट किया था कि अराउंड 10th of March वी शुड बॉटम आउट प्राइस वाइज. देन फ्रॉम 10th of March to probably 10th of April we should bottom out time wise, and once these two cycles are completed we may move towards a full and final target on the higher side. Okay. So ये अभी भी valid है, and I think right now what should happen is something like this, and again there should be a nasty drop in the third round. ठीक है. Now with this, with all these things said, let us see कि निफ्टी वगैरह किस तरीके से positioned है. एक बार फॉरेक्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है इस समय. सो यूएस डॉलर, as you can see, it is taking resistance finally. There is a good resistance coming in the US dollar. USD INR जो है ये भी मेरे ख्याल से कल सुबह जो है नेगेटिव in the sense that it will go down by a good 50 पैसे margin. And if crude oil remains at a lower level, I can see crude is still around the $120. I think overnight crude oil is going to see a lot of profit booking. I think जितने भी शेख चिल्ली है ये सब जो है प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करेंगे, एंड दैट विल हेल्प
the USD INR in tomorrow's session. So euro is trading bullish since morning, and this is something which was giving me a lot of confidence to go long in the market. और आज हमने ग्रुप में जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग भी कराया था. इनफैक्ट हमने फ्राइडे से लॉन्ग किया था. कल हमने जो है इंट्राडे थोड़ा चर्न किया. इंट्राडे हमने लॉस भी बुक किया फ्राइडे वाले ट्रेड्स पे. फिर कल हम बिना किसी इंडेक्स पोजीशन के गए. एंड टुडे द प्लान वाज वेरी क्लियर. आई वाज वेटिंग पेशेंटली, एंड देन जस्ट बिफोर द क्लोजिंग हमने एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड उसमें दिया, जिसको हमने कैरी भी करने की सलाह दी थी. सो दोज हु हैव कैरीड टुमारो, आई थिंक यू आर in for a good morning. Now, this euro was trading positively since today's morning session. तो इससे एक कॉन्फिडेंस आ रहा था. Now, suddenly why this euro is becoming bullish? अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूरो और ब्रिटिश पाउंड पे सबसे ज़्यादा जो है हम बेरिश रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से. So why suddenly out of a blue moon this euro is behaving like a hero? It's because on a very long term chart, on the very long term chart, euro has come at a major support level. So this is the very strong support area for euro, and I think for the short term euro has bottomed, and I think again euro should try to go up. And next time it will be a decisive time whether the euro or the dollar will take the leadership role. So euro मैं समझता हूँ यहाँ पे बॉटम हो चुका है, और बिकॉज यूरो बॉटम आउट हो चुका है, सो डेफिनेटली डॉलर पे जो है एक बेरिश प्रेशर डेफिनेटली आएगा. नाउ एनएससी फॉरेक्स फ्यूचर्स पे क्या लेवल्स होंगे, क्या ट्रेड अभी करना है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं. सो नंबर वन, सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रेड था यूरो आईएनआर. सो यूरो आईएनआर वी हैव ऑलरेडी हैमर्ड अ लॉट. ये ट्रेड जो है खत्म हो चुका है. दूसरा था जीबीपी आईएनआर. दैट वाज अनदर फैंटास्टिक शॉर्ट ट्रेड. ये ट्रेड भी ओवर हो चुका है. सो दो पेयर्स में जो है बहुत ही सॉलिड ट्रेड्स ओवर हो चुके हैं. We are left with USD INR, which is in loss. We are left with JPY INR, which is in loss. So ये दोनों का जो है, ये दोनों का टर्न कल आएगा, and tomorrow even these two will start to come in profit. So how are we going to approach? Again, जो कल मैंने लेवल्स बताए हैं वही लेवल्स पे हम काम करेंगे, and वही रेंज होगा. सेल ऑन राइज अप्रोच होगा. Now the preferred pairs for shorting, for immediate shorting, will be your JPY INR. This will go first ranking. USD INR, this will go as a second ranking. एंड यूरो और जीबीपी को एक हायर लेवल्स पे शॉर्ट करना है. व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी करेक्टेड द मोस्ट. सो इवन इफ यूएसडी आईएनआर गोज डाउन, बिकॉज इनहेरेंटली दे आर गोइंग टू बाउंस बैक. सो इसमें फॉल जल्दी नहीं आएगा. इसमें फॉल आएगा वो तुरंत बाय हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. ठीक है. सो दीज टू शुड बी योर फेवरेट शॉर्टिंग पेयर. लॉन्ग साइड करना है तो दीज टू शुड बी योर फेवरेट लॉन्ग साइड पेयर. इसमें स्पेशली जीबीपी आईएनआर अगर अपने को नीचे मिलता है 100.5 से लेके 100.9 या 101, तो यहाँ पे इसे जो है बाय कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल ऑन द फॉरेक्स फ्रंट. कमोडिटीज में क्या सिचुएशन है? कमोडिटीज में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. क्रूड ऑयल शॉर्ट ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी. आई थिंक बहुत सारे प्रॉफिट्स हो चुके हैं उसमें. नेचुरल गैस की एक बात करते हैं, क्योंकि कल नेचुरल गैस में एक ट्रेड आ सकता है. दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. अब तो योगी जी की सरकार भी बनने वाली है, सो चैनल को जो है सपोर्ट करिए, और 200 लाइक जो है इसको आज आप करिए. सो नेचुरल गैस, सी नेचुरल गैस में क्या सिचुएशन है? नेचुरल गैस में एक बेहतरीन ट्रेड आने वाला है mostly tomorrow. So tomorrow I think we should see natural gas. There is a probability, I'm not saying certainly, but there is a good chance that natural gas will give us one good trade. See, natural gas में अगर मुझे कल के दिन नेचुरल गैस मुझे 330 के आसपास अगर दिखाई दे, या मे बी 330 to 340, somewhere here, okay, somewhere here, I want to see this leg coming here. I will watch in this area. Okay, I will watch in this area. And if it starts to move up, something like this, if it starts to roll over, I will buy natural gas. Okay. Now let me tell you, ये थोड़ा देखने के बाद वाला ट्रेड है. ये outright trade नहीं है. It's a anticipation right now. So I think that natural gas
upon hitting 330 or 328, 332, somewhere here, it should start to reverse on the higher side. And if it again starts to travel above 355, then I think it is in for a nice up move towards say 420 to 450 sort of level in the first round, okay, to meet the prior resistance over here. अब ये जो ट्रेड हम लेंगे, इसका स्टॉप लॉस हमें थोड़ा डीप रखना होगा, 320 के आसपास रखना होगा. सो इट विल बी a bigger stop loss. Maybe I would like to keep 310 or 315 sort of level. But as you can see, there is a 100, more than 100 point scope. So I think अगर इसमें 20-25 रुपए का रिस्क लेना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इट कैन बी अ वेरी बिग ट्रेड. सो ये एक ट्रेड आइडिया मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ. जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, आपको प्राइस एक्शन ट्रेनिंग वगैरह आपकी हो चुकी है, आप चार्ट्स को देखते रहिए एंड प्रॉब्ली टुमारो यू शुड गेट दिस ट्रेड. ओके, सो अब मेरा फोकस जो है क्रूड पे बेरिश साइड में है और नेचुरल गैस में लॉन्ग साइड में है. आई विल कीप ट्रैकिंग नेचुरल गैस till this trend line which I am drawing from the bottom, till this trend line is holding up, and the level that comes is till say 320. यानी जब तक ये 320 315, जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है नेचुरल गैस में, आई डोंट रूल आउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ एनदर स्पाइक. नाउ डेफिनेटली ये कुछ क्राइसिस के वजह से ही होगा. ओके, व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट नेचुरल गैस इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. इसके जो एक साइकिल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल से. सो प्रॉब्ली इन द थर्ड कॉन्ट्रैक्शन वी शुड सी अ ह्यूज एक्सप्लोजन ऑन द हायर साइड. और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाता है, यानी अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर वी विल गो विद अ वेरी वेरी बेरिश आउटलुक ऑन द नेचुरल गैस. ठीक है, सो थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कमोडिटीज मार्केट इस समय, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग. As per my knowledge, the commodities market, MCX or the commodities market, it will dominate the equity market for rest of this year minimum. I think commodities market में एक मेजर मनी फ्लो जो है ये घुस चुका है. एंड ये सिर्फ एक दो महीने के पर्सपेक्टिव से नहीं घुसा है, ये आने वाले 4 5 6 10 साल के पर्सपेक्टिव से जो है ये घुसा है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट equity is no more the darling of hedge funds. I think it has shifted right now to commodities. Okay, and as I had said that we are in for a pre 90s market. If you were alive that time, those were the era of commodities trading. जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो आया ही है, ये आया ही है कमोडिटीज मार्केट से. सो आई थिंक वी आर गोइंग बैक इन टाइम. We are going reversing the 30-40 year cycle, and coming years, coming months, coming weeks, it will be all about how you trade commodities. Okay, I only wish that we could had a better regulator in place who could keep lower quantity lower lot size in the futures market, or develop the futures market, so we can make the most of this coming move in the commodities market. चलिए, ये हो गया अपडेट इन सब चीज़ों पे. गोल्ड सिल्वर वगैरह जो है, आई थिंक ऑल द कमोडिटीज दे आर गोइंग टू विटनेस अ मैसिव प्रॉफिट बुकिंग राइट नाउ. एंड कमोडिटीज दोस्तों इसी तरीके से पीक आउट होते हैं इन अ वेरी वेरी हाइटेंड वॉलेटिलिटी, lot of speculation, lot of margin, high rise in margins. आज देखिए निकल जो है 100% मार्जिन हो चुका है, लगभग 1 करोड़ का एक लॉट साइज है. इमेजिन, इट इज अनप्रेसिडेंटेड. सो बूम और बस्ट साइकिल्स जो होते हैं ये इसी तरीके से चलते हैं. ठीक है, okay, so commodities may nothing much to add. Now one more asset class which is very very interesting right now is the cryptocurrency, which is Bitcoin. Now if you notice, since last 5 days 4 days, cryptos were very very silent. ठीक है, ये चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके बैठे हुए थे, एंड ऑल द फोकस वेंट ऑन टू कमोडिटीज. सो आई थिंक क्रिप्टोज में यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सेलेक्टेड क्रिप्टोज लाइक बिटकॉइन एक्सेट्रा जो है, यू कैन बाय. इथेरियम इज ट्रेडिंग एट 2600. आई थिंक इथेरियम जो है ये अच्छा बाय बनता है, थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस के साथ जो है ये अच्छा बाय बनता है. 2300 का अच्छा सपोर्ट है. आई थिंक 3200 इथेरियम जा सकता है. सो दैट्स स्टिल very very huge upside. 3200 is not bad.
considering right now we are at 2600. So I think Ethereum, Bitcoin, these are looking good to me. इथेरियम मेरे ख्याल से 2300 से 3300 के रेंज में चलेगा, ये 1000 पॉइंट का रेंज है, सो नीचे से ऊपर की एक मूव हम बाय कर सकते हैं. बिटकॉइन 36,000 से लेके 48,000 के रेंज में ट्रेड होगा, सो बिटकॉइन में भी एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है. सो लेट अस टॉक अबाउट दी निफ्टी बैंक निफ्टी वेरी क्विकली. सो निफ्टी में आज क्या हुआ और आज हमने क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो निफ्टी, if you look at the 30-minute chart, what happened is Nifty started to move after hitting the mob level, which was around 15,950 for the spot. Nifty started to move down, correct? And mob level say again it reacted, went just below the previous day bottom over here. All the 30-minute candles, they were very very secular in nature, just like the current government, right? So it was very very secular. Then here you saw some change in behavior, then you had an inside bar, and then the breakout. So it is here that we suggested a long trade. I was patiently waiting for this change in behavior to happen, and then the target was open right till this. So market जब तक समय मिला, market डे हाई पे क्लोज हुआ 16,000 के आसपास, एंड दिस वाज अ वेरी नाइस अप मूव, वेरी नाइस ट्रेड सेटअप. सो कल भी मैं बाजार को ऊपर ही देख रहा हूँ. और डेली चार्ट अगर हम देखें और वीकली चार्ट देखें, तो इसमें एक अच्छा, एक आज बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. इट्स अ वेरी नाइस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, एंड वी आर अप्रोचिंग द प्राइस एंड टाइम रिवर्सल. सो आई थिंक this bottom is definitely going to hold for some time, for at least a move till 17,200. I think this bottom should hold. Now let me also tell you one more thing. Today's bottom in Nifty spot and Bank Nifty spot, that is the most important level, क्योंकि इन दोनों का अब बचना बहुत ज़रूरी है. अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुगेदर, इट हैज़ टू बी टुगेदर, ठीक है. मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज होता है, देन आई थिंक दिस मार्केट विल कैपिचुलेट इन अ वेरी वेरी डेवास्टेटिंग मैनर. So right now, I don't think so it is going to happen. I think we have made a credible bottom here, and now we should start the counter back rally. सबसे पहले इस गैप फिलिंग को हम देखेंगे 16,200, जो कि क्रिटिकल लेवल है हमारा. 16,200 के ऊपर 16,600 पहले भी कल भी डिस्कस किया था, एंड देन 17,200. इस तरीके से इस बाजार को हम लेके चलेंगे, ठीक है. अब आते हैं कि कल के लेवल्स क्या होंगे. सो आई थिंक टुमारो मार्केट शुड ओपन विद अ बिग गैप अप, and it will be very difficult to scout a trade for intraday. Nevertheless, levels हम सेम रखेंगे. 15,950, that will be the make or break level. 15,950 जो कल का हाई है, आज का ब्रेकआउट एरिया है. दिस zone should be your make or break level. Any dip that comes, you must buy. And first target is this weekly gap, 16,250 and then 16,480. These two targets are there for intraday. So make or break level for tomorrow's session should be 15,900, 950, and first target 16,225, then 16,480. I think all these targets must be achieved tomorrow. Now suppose if market opens gap down, something bad happens, और market mob level के नीचे खुलता है, ठीक है. So in that scenario, don't go short. In that scenario, watch a level of 15,835, and in that scenario this will become your make or break level, ठीक है. सो स्पेसिफिकली ये मैं बता रहा हूँ बिकॉज ओवरनाइट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ दी साइड्स, ठीक है. सो अगर मॉब लेवल के नीचे की गैप डाउन होती है, तो इसको कैंसिल कर देना है. हमें 15,835 को कंसिडर करना है, एंड अबाउट दिस इट विल बी ऑल बुलिश, सेम टारगेट्स होंगे. बिलो दिस इट विल बी ऑल बेरिश. 15,680 शुड बी टेस्टेड, जहां से वापस से एक और बाउंस आना चाहिए 15,985 के लिए, ठीक है. सो दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी फ्रंट. निफ्टी का वीकली चार्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, एंड आई बिलीव इफ वी कैन मैनेज टू होल्ड, this will become a good candle. Something of this sort I'm expecting to happen over here, okay. Even in this case, we had a channel that was broken during the week, intra week, but then we came again inside that channel,
and then we staged a rally. So similar thing is happening. As you can see, this is the channel, right? And we broke through the channel through a gap. So मोस्टली वी शुड पॉप इनसाइड 16,200, इसलिए क्रिटिकल लेवल है, इसके अंदर हम आ जाएंगे तो ये बॉटम सिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर बैंक निफ्टी। इसके बाद मैं एक बार एक्सी इन्फिनिटी को चेक करता हूँ। सी बैंक निफ्टी इज हैज स्टेज्ड अ वेरी नाइस रैली। दिस इज द जोन दैट आई वाज वाचिंग यस्टरडे। 32,000 एक पैनिक में आना चाहिए था, जो कि हो चुका है। लास्ट टाइम दिस एंटायर रैली towards the 42,000 level started from this trend line zone, and we are here. Also we are at the median line of this declining pitchfork. So there is a good confluence, and plus you have the previous all time high placed at this level of 32,000 thereabout. So I think ये बहुत ही स्वीट एक जोन है शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के लिए। आई थिंक मार्केट इज डूइंग दैट, मार्केट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सो आई थिंक बैंक निफ्टी जो है at least 35,500, and it should travel, it should basically travel at least till 36,000 or thereabouts. Probably it can also travel 37,000 also, ठीक है। ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिस एंटायर मूव वाज वेरी स्पेशियस इन नेचर। स्पेशियस का मतलब है कि जो लोग मेरी प्राइस एक्शन जो सीख चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो देयर इज अ रूम टिल दिस। आई थिंक इट डिजर्व्स टू गो ओवर देयर। हालांकि मैं इसे बिट्स एंड पीसेस में लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे जो 200 डीए में है, जहाँ से हमने ब्रेक किया था, सो ये जो गैप है 34,400 के आसपास, ये पहला टारगेट होगा। एनी डिप दैट कम्स अगेन वी विल बाय, एंड वी विल गो टिल दिस 35,800, 3600, 36,000, ठीक है। देन वी विल इवेल्युएट। सो no need to become like outright very bullish, or no need to become outright very bearish. I think just place support and resistance for few days. Let the first leg start to happen in the market, then we will see what's in store for future. क्योंकि अगर ये ऐसे होता है और फिर ऐसे चलता है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट। सी समथिंग लाइक दिस आई एम सेइंग, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, लेट द फर्स्ट लेग हैपन। फर्स्ट लेग हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से खेलना चाहिए। उसके पुल बैक के बाद जो थर्ड लेग शुरू होता है, उसे ट्रेंड के एंगल से खेलना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में यही व्यू है। लेवल्स कल के लिए इंट्राडे में सजेस्ट कर देता हूँ। सी बैंक निफ्टी today I messaged in the group also that we are making a falling wedge pattern over here, and this is a very nice support resistance level of 32,450 thereabouts. So when I saw this, this was very imminent, breakout to आना ही था। So when this broke out, that time I messaged for a long trade. So this was a very nice move. Now कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या होना चाहिए? सी आई थिंक for bank nifty you can go with your 32,800. I think that's a pretty solid level. I think I would keep 32,800 as a mob level, and targets will remain open till 34,400. So I think 32,800 आपका मॉब होना चाहिए, और 34,400 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। आई थिंक कल बैंक निफ्टी जो है कम से कम 1,000 पॉइंट रैली करेगा। अगर ओवरनाइट कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं फटा, तो कल बैंक निफ्टी जो है, आई वोंट बी सरप्राइज टू सी बैंक निफ्टी इवन मूविंग ऑल द वे टिल 35,500 टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट्स इट ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो लेट अस, या आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ। अगर कोई स्टॉक क्वेरी है तो आप सुपर चैट कर सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। ब्रॉडली जो बाजार के बारे में मुझे बताना था, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। यूएस मार्केट इस समय 2% ऊपर हो चुका है। सो S&P 500 हैज अगेन डिफेंडेड द 4200 लेवल, विच वाज वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि यूएस मार्केट दोस्तों सबसे पहले से करेक्शन करना शुरू कर रहा है। यूएस मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो हमारे मार्केट के पहले शुरू हो चुका था यूएस मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो तो नैस्डैक वगैरह में भी हैवी करेक्शन हो चुके थे ना। सो आई थिंक राइट नाउ एप्पल शुड बी हैविंग सम इवेंट। जो लोग आईफोन के क्रेजी लोग हैं, अब I don't know, but Apple I think has some event tonight, so that is also coinciding very nicely with the double bottom in the Nasdaq. So Nasdaq is making a double bottom. So Nasdaq
दोस्तों 14,800 तक जा सकता है मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए. एंड Nasdaq इज ऑल्सो शोइंग अ सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलिंग वेज पैटर्न लाइक दिस. सो आई थिंक ठीक है. ओके. देखो इस मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कोई बड़ा व्यू लेके नहीं चलना है, क्योंकि ओवरऑल कितना भी मार्केट रैली कर ले, जैसा मैं पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कितना भी मार्केट रैली कर ले, इट इज़ अ बेयर मार्केट. ओके. सो आई विल गो विथ माई प्रीवियस व्यू ओनली. ठीक है. एंड सिंस so many months this has been proven correct. And the best part of our analysis was the fractal logic which I shared with you. I think no YouTuber or probably no fin Twitter or anybody has had spoken about this logic. So in my training I try to teach all these things कि कैसे कैसे आप बाजार को देख सकते हो, प्राइस एंड टाइम एनालिसिस करो, सारी चीजें सीखो धीरे धीरे. So I think we have made the second bottom, which is, I would say, we are here. As you can see, there was two slight bottoms, so we have two slight bottoms, and we should go and do some rally, and probably again we might come here in some April or May somewhere. I think 10th of April, and coincidentally even this cycle it was 15th of April. So and bottom somewhere around 18th of March. So I think very very beautifully ये चीज़ें अलाइन हो रही हैं. चलिए दोस्तों, let us take couple of stock queries and then we'll wind up for the day. Okay. uh, I don't know, see there were lot of messages. Let me read the message first. SMC Global Securities, SMC Global Securities, SMC Global Securities. See इस स्टेज पे ऐसे स्टॉक इज अ वेरी बैड चॉइस. ठीक है. बंदा सपोर्ट पे है, बट बंदा कितना भी खड़ा होगा ये गिरेगा. आप ये देखो ना यार, ग्लो एसएमसी स्टॉक को कौन बाय करता है? ठीक है. द ब्रोकरेज गाइज, they run in the last leg of the bull market that has happened 6 months back. Tata Chemical, टाटा केमिकल पे क्वेरी है. सो टाटा केमिकल आई थिंक पिछले 5-6 दिनों में जो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दिखाया है. इनसाइड बार ब्रेकआउट है, रीटेस्ट ऑफ 200 डीए में. ठीक है, अगर टाटा केमिकल्स बाय किया है तो होल्ड करो विद दिस एज अ स्टॉप लॉस. अगर फ्रेश बाय करना है तो आपको 825 के आसपास बाय करना चाहिए. 750 का स्टॉप लॉस होगा. RBL, सी RBL रत्नाकर बैंक परमानेंट, ये अ, अ, क्या बोलते हैं, परमा बेयर काउंटर है. ठीक है. सो इसमें जब रैली होगी तब इसे शॉर्ट करेंगे. ये एक मैसेज है, व्हाट विल बी द राइट टाइम टुमारो फॉर इंट्राडे लाइक. समझ में नहीं आया, मैसेज नहीं समझ में आया. नवीन, ओके, वेलकम वेलकम. यस यस, फर्स्ट लेग हमेशा टेक्निकल होता है. चलो, आई थिंक कुछ क्वेरीज दिख रही हैं अभी. एच डी एफ सी बैंक होल्ड करो भाई. एच डी एफ सी बैंक 1300 जब तक डिफेंड कर रहा है, नो नीड टू वरी. हेड एंड शोल्डर ब्रीच होके फ्लश होके ऊपर जाना, ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है. सो 1300 इज होल्डिंग अप, सो जस्ट होल्ड ऑन. वेट वेट टिल 1300 इज नॉट ब्रीच्ड. ठीक है. एंड टुडे आई थिंक इट हैज़ मेड आउटसाइड बार, बुलिश आउटसाइड बार. सो आई थिंक एच डी एफ सी बैंक थोड़ा अभी तो एक स्केल बैक करना चाहिए 100 पॉइंट ऊपर में. टाटा स्टील, टाटा स्टील कॉल ऑप्शन भाई, जब विक्स 30 पे होता है ना तो कॉल वॉल नहीं खरीदते. ठीक है, फंस जाओगे आप. सो सी मेटल्स, बैंकिंग में रिवर्सल और मेटल्स में एक पुल बैक, वेरी वेरी एक्सपेक्टेड लाइंस है ये. बुलिश काउंटर है, पुल बैक पे बाय करना अभी. तो यहाँ पे फ्रेश आप बाय क्या करोगे? पुल बैक का वेट करो. अगर पहले बाय किया है तो थोड़ा, अगर न्यू हाई के लिए प्ले करना है तो यूल हैव टू वेट. इंडिगो, very very poor stock queries I am getting. Very very pathetic stock queries. अगर ये stock queries हैं तो आई एम 200% श्योर अबाउट
the third decline that will happen in this market. सो इंडिगो देखिए सपोर्ट पे है, अभी किसी भी प्रकार का रिवर्सल नहीं है. सो नो ट्रेड फ्रॉम माय साइड. इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन योर ओन, कीप अ 1500 रुपीज स्टॉप लॉस. शॉपर स्टॉप, भाई साहब शॉपर स्टॉप कौन खरीदता है यार? शॉपर स्टॉप से सामान नहीं बिक रहे, आप शेयर खरीद रहे हो. स्टॉक ऑलरेडी डबल टॉप बना चुका है. नाउ सी, अगर आपको ये स्टॉक होल्ड करना है, अर्निंग्स आने वाली है और ये इसका आखिरी साइकिल है, ठीक है. सो अगर आपको होल्ड करना है तो 297 स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हो. कोई भी अप मूव आता है निकल जाओ, आई एम टेलिंग यू. SRF, यस, ये हुई ना बात. सो SRF अभी 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ये 200 DMA जस्ट लाइक ऑल अदर स्टॉक्स, लेट इट कम. सो अभी ये गैप डाउन ओपनिंग कल हुई थी, आने दो इसे, थोड़ा समय दो, गिव इट सम टाइम. We will buy this stock at two places. Number one, either here, or if it starts to, consolidate and then make a bullish structure over here. So या तो हम यहाँ कहीं buy करेंगे after such consolidation और breakout लेंगे इसका, या फिर यहाँ buy करेंगे. ठीक है, इस समय कोई ट्रेड नहीं है. स्टॉक का काम है मूव होना, वो अपना काम करेगा. ट्रेड अभी नहीं है. अगर आपने लॉन्ग किया है तो 2100 को स्टॉप लॉस रखिए, 2100 के नीचे जो कल का बॉटम है. एंड दिस इज वेयर द मूविंग एवरेजेस आर किसिंग ईच अदर. तो ये मीन रिवर्जन होगा 2353 के लिए. आईसीआईसीआई बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक अभी 705 का रेजिस्टेंस है. ओके, 700 इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट था, विच गॉट ब्रोकन डे बिफोर येस्टरडे. So any move that comes will take a resistance at 705. If you are stuck in all these stocks, then your first objective must be to neutralize the M2M. यानी आपके जो लेवल्स आ रहे हैं, पहले आप चुपचाप निकल जाओ और फ्रेश तरीके से काम करो. ठीक है. इन्फोसिस, आईटी पैक अभी ठीक है. कल विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस सबकी बात हुई थी. सो इन्फोसिस फाइनली चलो आज ब्रेकआउट तो कर दिया है. सो आई थिंक नाउ इट इज ओके. इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, आई थिंक इट इज ओके. अगर आपने फ्रेश ब्रेकआउट भी बाय किया है तो भी ठीक है. यू कैन कीप 1660 एज अ स्टॉप लॉस. देर इज अ पेंडिंग गैप एट 1865 विच इज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हायर. सो यू कैन होल्ड टिल 1865. 1865 पे आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. ग्लैंड फार्मा, सी ग्लैंड फार्मा अगेन डेट काउंटर, टोटल अवॉइड. इंडियन बैंक, पीएसयू बैंक है. पीएसयू बैंक जो है ठीक है. एसबीआई पहला प्रेफरेंस होगा. अब बहुत अच्छा, इसने शानदार बुलिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ बनाया है. ठीक है, बंदा ठीक है. 130 125 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं. कुछ खास एज सच इसमें और नहीं दिख रहा है मुझे. जस्ट पीएसयू बैंक प्ले करना है तो एसबीआई प्ले करो ना. ठीक है, 440 के ऊपर इसे जाने दो. ठीक है, सो ये सेफ है. सेफ बेट आपका एसबीआई है. स्टॉप लॉस भी कम है. इफ यू कैन कीप 410 400 एज अ स्टॉप लॉस तो ठीक है. कम से कम ये अगर जाएगा भी तो 520 तक तो लेके जाएगा. इस साइकिल में हो इस साइकिल में आई डोंट थिंक 570 वाला टारगेट होगा, बट यस, गुड चांस टू सी 500 एट लीस्ट. सो सेफ है. 10% का रिटर्न है बट सेफ है. कैनरा बैंक, देखो कैनरा बैंक में मैंने पिछले 4 या 3 महीने में 3 स्विंग कराई थी. ठीक है, बम्पर स्विंग्स थे. अब मुझे स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 PSU जो हैं, इन्हें इस साल के अंत तक खाली कर देना. अगले साल पे छोड़ना नहीं. ठीक है. ट्राइडेंट, ट्राइडेंट जैसा स्टॉक, इस पे आप क्यों क्वेरी पूछते हो? क्या मैं बताऊं इस स्टॉक पे? 37 रुपए से होल्ड करो. एबीबी इंडिया, लास्ट क्वेरी फॉर टुनाइट. आई थिंक आई एम गेटिंग टू लेट. एबीबी इंडिया इज अ बेरिश काउंटर दोस्त. कुछ खास नहीं है. इट जस्ट अ चार्ट, नथिंग एल्स. देयर इज नो स्टोरी इन दिस चार्ट. नेक्स्ट है HDFC. HDFC, देखो HDFC फिलहाल तो चलो ठीक है, टेक्निकल बाउंस वगैरह आ सकता है, बट
खत्म है काउंटर पॉज। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियोज में होम लोन्स वगैरह, सच ए ह्यूज रियल एस्टेट इन्वेंट्री, राइजिंग इंटरेस्ट में आपके रियल एस्टेट वालों की भी बैंड बजेगी। सो आई एम नॉट वेरी गंग हो अबाउट दिस। ये सब बहुत ही बैड सेक्टर्स हो जाएंगे आने वाले 4-5 सालों में। सो कोई भी अच्छा एक मूव आ जाए तो ये सबसे खाली करके बाहर निकल जाओ। ये स्टॉक कब का बेरिश मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इट्स वेरी बेरिश। ए बी कैपिटल, ओके, सी ए बी कैपिटल, इससे भी बाहर निकल जाना कोई भी अपमूव आए, ठीक है ना। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज सी पी एस यूज कैन मैनेज, ठीक है, इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग ठीक है, इन्हें थोड़ा प्रेफरेंस भी मिल जाता है। प्राइवेट जो है ना, इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पीएसयूज यही, इसलिए पीएसयूज 1 ईयर का साइकिल में पीएसयू सेफ बेट है। और प्राइवेट जो है ये ट्रेडिंग बेट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग बेट है। सो ये जो आपका स्टॉक है ए बी कैपिटल, सब सपोर्ट्स में है, स्टॉप लॉस लगाओ, होप फॉर द बेस्ट एंड यू गेट सम रीटेस्ट, यहाँ पे आप एग्जिट करिए। कोई डेडली ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है इन ऑल दिस स्टॉक्स। थॉमस कुक, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेरी। व्हाई? बिकॉज ये स्टॉक खत्म हो चुका है। सो थॉमस कुक जो है, इसमें कोई भी अपमूव आता है निकल जाओ, दीज आर ऑल डेड काउंटर्स। भारती एयरटेल, अगेन भारती एयरटेल इज अ बेरिश काउंटर। अपमूव जो है 710 वगैरह तक आ सकता है, कल शायद इसको डिस्कस किया था हमने। सो यस, टू डेट हैज बाउंड। कीप ए 9 ईयर 710, अगर आप बुलिश हो 710 पे निकल जाना। देर कैन बी वन मोर काउंटर बैक रैली, ओके। आई डोंट थिंक, आई डोंट ट्रस्ट दिस कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल कल जो बना था ना 630 से, बहुत ही एक सुपर अपमूव आया था। आई डोंट ट्रस्ट दिस कैंडल इन अ सेंस दैट इट विल बी रीटेस्टेड सम टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। सो यहाँ पे एक गैप है 710 के आसपास, एक बार एग्जिट, यहाँ पे चैनल रेजिस्टेंस भी है। एंड अगर ये एक्सटेंड करता है तो मे बी 730, बट आई वुड लाइक टू शॉर्ट दिस स्टॉक समवेयर इन फ्यूचर, बिकॉज दिस इज नॉट अ बॉटम। जहाँ मुझे ऐसा कुछ कन्विंसिंगली दिख जाता है तो इस स्टॉक पे मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड लेता ही हूँ, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। एच डी एफ सी ए एम सी, पूरी दुनिया एच डी एफ सी में घुस चुकी है, सारे एफ आई आई जो एच डी एफ सी बेच के निकल चुके हैं। एच डी एफ सी ए एम सी, ठीक है, अभी टेक्निकल सपोर्ट है, 2000 का स्टॉप लॉस है, मे बी इट कैन बाउंस टिल 2450। हालत खराब होने वाली है। आप ये देखो ना, लुक एट द लॉजिक, एच डी एफ सी ए एम सी क्या काम करता है, क्या काम करता है आपको पता है, ठीक है। इसने पहले डबल टॉप बनाया 8 सितंबर के आसपास, और सबसे पहले ये बंदा बेयर मार्केट में चला गया सबसे पहले। And this stock never made new high above this COVID high. So it is telling us a story. It is telling us a story that the rising interest rate environment that we are going to see, it will not be good for companies dealing with ARCs, and there will be a lot of bad debts in the future. MCX स्टॉक के बारे में क्वेरी है। MCX एज अ स्टॉक, ओके। ये स्टॉक ने तो, आई थिंक जहां मुझे याद आ रहा है कि इसने एक क्रिटिकल लेवल ब्रीच, यस, सी क्रिटिकल लेवल था 1450 के आसपास, सो दैट गॉट ब्रोकन। सो सिंस देन इट हैज बीन बेरिश, ओके, खत्म। सी दीज आर डेड स्टोरीज नाउ, ओके। Such stocks, they get their best time when the equity markets are in a euphoria mode. That euphoria mode is gone in October itself. So now what will happen is, because of that memory, that recency bias, all those people who are stuck in this stock, they will hope that you will get this sort of a move, but you will never get that sort of a move, okay। So ये स्टॉक जब अपने पुराने ब्रेकडाउन लेवल पे रीटेस्ट करता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। चलिए लेट्स वाइंड अप। आखिरी स्टॉक में लूंगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा
बेटर है। टेक महिंद्रा कल भी डिस्कस किया था मैंने। आई लाइक दी चार्ट, आई लाइक दिस चार्ट। सो एनी डिप दैट कम्स यू कैन बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 1280। आपका टारगेट जो है टेक महिंद्रा में 1620 का टारगेट ठीक है, 1620 का टारगेट ठीक है। ओके, so that's it. Let us wind up. It is almost 12 o'clock, so I will wind up the session. Take care. Thank you so much. And before I wind up, just an update. Next training is on this weekend, and just 1 day is left to register. आज 2 बार लाइव सेशन करना पड़ गया, so that is why बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है. So I will have to make a move. Thank you so much. Take care. Wish you all the best. Good night. जय माता दी.